कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट तो नहीं है बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. म्यूजिक इज इन द ब्लड एंड आई बीन अ म्यूजिक कंपोजर. पहले म्यूजिक किया है मैंने एंड आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली. Everybody is a music composer in the family. So music has been there always. Direction has been 15-20 years that I've been doing a lot of music videos for Mika ji and Shivani Kashyap and all. So it's not difficult, but it's fun. Yes, this video is gonna be a little different from the regular videos, because it's got a lot of action and a lot of emotions, and it's a very dark video. So difficult तो नहीं, but it's gonna be fun. Yeah, absolutely yes. शायद आज गाना गा रहे हैं तो जी. क्या फील है, क्या गाने का जो एक एलिमेंट होता है वो कैसा है? देखिए दिस इज इट्स द ये आजकल का जो गाने का ट्रेंड चल रहा है, इट्स मोर और लेस ऑन दैट ओनली. इट्स अ वेरी डार्क सॉन्ग. इट्स ब्रोकन लव एंड शाहिद ऑब्वियसली एवरीबडी नोज इज अ फैबुलस सिंगर एंड ही वाज द फर्स्ट चॉइस जब हमने डिसाइड किया कि ये गाना करना है. तो डीजे ऑल्सो एंड देव द एक्टर, वी वर सिटिंग एंड बाउंसिंग इट आउट. सो एवरीबडी यूनानिमसली डिसाइडेड कि शाहिद इज अ वेरी गुड choice. So that's obviously it's going to be great, and I hope everyone loves it when it comes out. कुछ स्पेशल प्लानिंग देव इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें? Yes, Dev is one person I've met after a very long time who's really wanting to prove his muscle out as an actor. He's different from the regular heroes, I would say, because he's very rough. He does not look like a hero. He's a very out of the box kind of a character, and he's a good performer. Plus, जो कैरेक्टर है वीडियो का वो उसमें परफेक्ट बैठता है. इट्स वेरी डार्क. सो आई होप ही यू नो everybody likes him and the video works for him. It's a 3-part video, तो 3 part में होगा. So hopefully it works So right. let me add to that a little bit. On this project, we've actually got multitaskers and very multi-talented people. Like Guru mentioned, he's actually a composer. It's fantastic that he's actually going to be directing the video, because at the end of the day, the person who's actually composed the song is the one who actually understands the emotions of the song really well. And given his experiences to actually bring that kind of emotions out on camera, I think we can all look forward to that scenario. As far as Dave is concerned, he's another multitasker, multi-talented fella. He can also sing, but he chose not to sing on this song. Yeah. He would rather basically be the main protagonist in the story, and that's really how the entire thing has developed. So as you will see, a lot of people who've come together to do this project, if I may use that word, are all multitaskers. They can sing, they can compose, they can do videos, so on and so forth, and that's where really the fun and the energy is coming through on the entire project. Absolutely. दीपक जी, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं कंपनी में एंड आपने देव को भी साइन किया है इस प्रोजेक्ट के लिए एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स. टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट स्पेक्टेक. Spectec is a media company. We've been associated with media for the longest time, for about 20 years now. Spectec is one such vehicle where we're going to explore the talent that exists in the country. Today, there is a democracy in terms of a distribution that happens for music across all platforms. It is something that we know what to do and how to do about it. Our idea is to basically get together talent, whether it is established talent or new talent or raw talent, give them the platform to go and basically explore their creativity, put the videos together, put the music together, make sure it gets distributed in the correct places, and excuse me. And basis that, the idea is to grow. The idea is to to present a platform where nobody is afraid to come and walk up to us and say, I have an idea, I have a thought, I am an artist, and it really will provide opportunities to a lot of people that may not have had the opportunity to explore their own talent before. And that's really what the media vehicle is all about. Of course, we are a business, we're a profit making organization, and we will have all business concerns and considerations put into place. But the idea is, given the fact that there is this large cultural hegemony that's going around in this country today and music is at a boom, we would like to present this as a platform to everybody so that they come and partner with us and we can take this to new heights. गुरु, आपकी लीनियज की बात करें म्यूजिक की जो बहुत बड़ी है उसके बारे में थोड़ा बताइए. I've been blessed. I mean, बहुत ऊपर वाले का करम है. I belong to Lakshmi and Pyarlal ji's family. Pyarlal ji is my Tauji, and the whole family. My father Saab is a composer. He's done films for Salman Bhai, Akshay, you name it. He's been there, done it. Mahesh Kishore, music composers. My brother is a music composer, Monty Sharma.
who's my teacher also. Mithun is my younger brother, who's done Ashiki 2, Equivalent. So the whole family is into the music industry. I was the only odd one out who stepped from the music industry to production, and production से फिर direction. So yes, the whole family is been blessed, and इतने बड़े family से होना, it's great, but it's even heavy कि लोग expect करते हैं कि उस family से है तो उस level का काम, उस that pressure is there. But God's been kind. अभी तक जो काम किया है, it's been great. So hopefully everything goes well आगे भी, and you'll see great work coming out of our team pretty soon. You know, Guru's really being very modest out here. He's a superstar. Let me tell you Nice. this. Yes, there is this huge pedigree and there is this huge legacy of the family, but on his own, I can tell you, some of the ideas and the composition that Guru brings to the table is fantastic, and they would really make his lineage proud of him, if I may say so. Fantastic thoughts, fantastic music, and the ability to string it all together really quickly is something which is the hallmark of Guru. The kind of awards that he's won, the kind of stuff that he's done, is amazing. And while he can be very modest and put it out there and thank everybody around it, the fact is that he does some amazing music himself. Thank you. God's been kind, yeah. गुरु आज जो गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, उसकी अगर एक लाइन आपके वे में Oh, I would have शाहिद loved का तो to. of course I would love to sing, but I'm not a singer, so it's difficult. But Shahid's coming soon, so you'll get an opportunity to listen to the song from his mouth. But it's a beautiful song, and honestly speaking, I did not sit and compose it. It happened. It was just we were sitting and talking and क्या करना है, कैसे करना है. So they wanted a love song, and ऐसे ही बैठे बैठे me, Dev and DJ, we were just working on the lyrics and how it should sound, and दो तीन वर्ड्स जुड़े, फिर लिरिक्स बना, फिर लाइन बनी, फिर हुक लाइन बनते 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 गॉड इज बीन काइंड के द सॉन्ग एक्चुअली टर्न्ड आउट प्रीटी वेल. सो होपफुली अभी शाहिद कम्स इन एंड देन यू गाइज विल गेट टू लिसन टू अ लिटिल बिट ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम हिज माउथ, विच विल बी अ बेटर डील. मैं गाऊंगा तो फिर कुछ सुनने भी नहीं वाला आगे गाने को एक्चुअल में. सो होपफुली एवरीथिंग गोज वेल. लेट्स सी हाउ इट गोज. anything you would like to add? No, I think it's best that we leave it to the audience to decide the kind of song it is. Absolutely. And initial reactions, I would expect everybody out here to tell us honestly how they think about it. We put in our heart and soul into the song, and we genuinely expect that it will be well received in the market. But yeah, Shahid will come, he'll sing, and let's just see what the reactions are out Absolutely, here. yes. Absolutely. Also wishing you all the best, Guru, with your forthcoming ventures also. Thank you. and Thank you very prospect much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you Thank so very much Thank for you. your time Thank and you. your courtesies Pleasure. out Thank you here. very much. Much appreciate this, yeah. Thank you. Does that work? सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर गुरु शर्मा. बहुत ही कमाल के कंपोज़र इंसान है, और मैं इनके साथ फर्स्ट सॉन्ग ये कर रहा हूँ. और मैंने जब ये गाना सुना, मुझे इसके लिरिक्स और इसका जो ट्रीटमेंट है सॉन्ग का बहुत अच्छा लगा. और क्योंकि बहुत ही बड़े घराने से हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इस फैमिली के साथ जुड़ना भी एक सौभाग्य है मेरा. तो इंशाल्लाह ये गाना मैं गा पाऊँ. मैं तो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ बिकॉज़ इतने अच्छे कंपोज़र और फैमिली से हैं. तो रंगरेज़ा इसका टाइटल, और गाना बहुत ही डार्क फील का गाना है जो कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, बट इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट. जो गाने चल रहे हैं इनसे थोड़ा सा रियली हटके है. ये कोई फिल्मी बात नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि ये फिल्म बड़ी हटके है, ये गाना थोड़ा हटके है, बट ये रियली थोड़ा हटके है. एंड जब भी ये आएगा प्लीज़ आप इसे अपना वैल्यूबल कमेंट दीजिएगा. देव, आपका डेब्यू हो रहा है, आवाज़ आपकी शाहिद की रहेगी. आपके फर्स्ट गाने में कितने एक्साइटेड हैं आप? सबसे पहले तो सबके आने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ. और शाहिद भाई के साथ मेरा पहला है, और डेब्यू में शाहिद भाई के साथ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है. और ऊपर से इंडस्ट्री के सबसे जो लेजेंड कहते थे इनको, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का नेफ्यू मेरे साथ हैं. तो मुझे तो लगता है कि आने से पहले ही मेरा कुछ अच्छा होने वाला है. और आप लोगों का साथ रहेगा, आपका प्यार रहेगा, तो हम मिलते भी रहेंगे, मुलाकातों का दौर चलता भी रहेगा. और थैंक्स फॉर गुरु. रंगरेज़ा एक शब्द अपने आप में एक सूफियाना, और शाहिद भाई इसको गाएंगे तो इसके अंदर, इसके म्यूज़िक में, इसके शब्दों में और सूफियानापन आ जाएगा. और बस यही था, और आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए. गुरु, इतनी अच्छी वंडरफुल टीम आपने सेट कर ली है फॉर द फॉर लॉन्च ऑफ देव, एंड शाहिद जी की आवाज़ है इसमें. जब डिज़ाइन कर रहे थे आप पूरा प्रोजेक्ट, क्या माइंड में था? मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, जब हम लोग ट्रैक पे बैठे थे तो रोमांटिक गाना करना था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि डार्क रोमांटिक गाना करना है जिसमें देयर बी एक्शन, देयर इज ब्लड. एंड शाहिद हैज़ संग सम रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग. मुझे
he does not need any introduction या तारीफ because he's already done it, been there. बट पर्सनली जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे तो यूनानिमसली मैंने कहा कि देव को और डीजे को कि सिंगर का क्या करें, तो सबने यही बोला कि यार वो शाहिद मालिया साउंड्स परफेक्ट बिकॉज शाहिद इज गॉट अ वेरी प्योर वोकल टोन एंड आई वांटेड अ वॉइस जो वो फील, you know, there are a lot of singers in the market, but Shahid, not because he's singing the song, genuinely, jokes apart में कि Shahid has got a very beautiful voice, he's got silk, and उसका जो feel है, उसका जो soul है, you know, the song needed a voice like that, so automatically it happened कि Shahid ही गाएगा गाना, और जब रंगरेज़ा वर्ड मिला हम लोग को, फिर कंपोज हुआ गाना, कैसे डिज़ाइन होता गया, कैसा लिखा गया, आसिफ करके एक मेरा फ्रेंड है उसने लिखा, मतलब इट जस्ट हैपेंड, हमने कुछ नहीं किया, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इट वाज डिवाइन इंटरवेंशन, गाना बन गया, इट जस्ट हैपेंड एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि वी हैव अ ग्रेट टैलेंटेड आर्टिस्ट हु इज गिविंग अस हिज वोकल्स, वी आर ब्लेस्ड दैट द टीम इज़ ग्रेट एंड होपफुली आप सबको ये गाना जेन्युइनली पसंद आए, जैसे शाहिद सेड कि ये अलग है, तो आप लोग सुन के डिसाइड करके प्लीज़ अपना प्यार दें इस गाने को, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेट एंड ब्लड एक्चुअली गोइंग थ्रू द सॉन्ग. So I hope it works for everybody. शायद अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है, बहुत जगह सब आर्टिस्ट के लिए एक नया एवेन्यू खुल गया है और बहुत सारे नए लेबल्स इनकरेज हो रहे हैं इस चीज़ के लिए. स्पेक्टेक का भी लॉन्च हो रहा है एंड आज आप ही के साथ शुरुआत हो रही है, तो उसके बारे में म्यूजिक सिनेरियो और स्पेक्टेक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी एक चीज़ है बिकॉज़ लॉकडाउन में बहुत कुछ सिखाया है और म्यूज़िक इंडस्ट्री मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा ग्रो हो रही है बिकॉज़ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सब अपना अपना हुनर दिखा पा रहे हैं और म्यूज़िक इंडिया का जो म्यूज़िक है सबसे ज़्यादा रिच म्यूज़िक है, तो हर तरह का म्यूज़िक आ रहा है और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं. थिएटर्स कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन तब तक एक जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो हम चाहते थे कि वो ग्रो हो और इस्टेब्लिश हो, जैसा कि हम लोग बाकी कंट्रीज़ में देखते हैं कि वो चीज़ें हो रही इंडिया में और माशाल्लाह काफ़ी हद तक हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना चुके हैं. मैं नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंपोज़र, बहुत सारे लिरिसिस्ट, सिंगर्स, तो ये एक अच्छी शुरुआत है और स्पेक्टेक मीडिया को भी मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी और इतने अच्छे गुणी लोगों को लेकर मैंने भी इसमें अपना एक स्थान बनाया. थैंक यू सो मच. देव, रंगरेज़ा की सीरीज़ बन रही है जैसे हमें बताया, और आप तीनों सीरीज़ में आप तो कितने एक्साइटेड हैं, क्या तैयारी की आपने, कॉन्सेप्ट्स या कितना इन्वॉल्वमेंट रहा आपका? रंगरेज़ा को लेके जब पहली बार दीपक, जो मेरे बड़े भाई के समान है, स्पेक्टेक्स जिनकी है, उन्होंने जब मुझे शब्द बताया, यार एक शब्द है रंगरेज़ा, मेरे को नहीं पता शब्द का मतलब, बोले प्यार का रंग. मैं अच्छी बात है, कहते कि इसके ऐसे ऐसे. देन मैं गुरु भाई से मिला, हम बैठे, हमारे जो जिन्होंने ये गीत लिखा है उन्होंने उनके शब्द सुने, इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया और वो एक सुनने के बाद एक अलग सी फील आई. तो गुरु भाई कहते हैं यार ऐसा कुछ करते हैं, डीजे ने ही बोला कि ऐसा कुछ करते हैं, इन दोनों ने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करते हैं कि इंडिया के अंदर ये वाला आज तक नहीं आया है कि एक 3 सॉन्ग्स एक सीरीज की तरह चल रहे हैं, एक स्टोरी वाइज चल रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा. बोले इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं. तो फिर मुझको लेकर बात हुई दीपक ने, गुरु ने, और सबसे अच्छे मैं खुशी मुझे इस बात की है कि तीनों ही गानों के पीछे सूफी अंदाज से गाने वाला है ये इंसान. अच्छा जी, मुझे लगा एक ही गाना गाऊंगा, दो गाने और मिल गए. ये सरप्राइज तो ये राज अभी यहाँ पे खुला, तो हम ये बात मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ कि 2 गाने और मुझे ही गवाएंगे 100% के, और मैं ही गाने वाला हूँ. नहीं, और वैसे जब एक कंटिन्यूटी है तो सब चीज़ों में कंटिन्यूटी है. चलो जी, ये तो अच्छी बात और है. स्टोरी के हिसाब से बिकॉज जो कैरेक्टर है उसका जर्नी है 3 डिफरेंट पार्ट्स में. सो 1 एपिसोड ये कि ये इंसिडेंट हुआ, फिर दूसरा सीरीज पार्ट रहेगा कि ये कैसे हुआ, और तीसरा रहेगा ये क्यों हुआ. सो इट्स इन सक्सेशन, और ऑब्वियसली एक मेल आर्टिस्ट है और तो उसकी वॉइस तो ऑब्वियसली वी कांट चेंज, एंड व्हेन यू हैव एन आर्टिस्ट लाइक शाहिद, वी आर नॉट स्टूपिड टू चेंज. तो सवाल ही नहीं उठता. शाहिद भाई एंड द टीम, I'll try my गॉड इज best, काइंड, गॉड इज काइंड, एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट, होपफुली एवरीबॉडी लाइक्स इट. तो ये मेरे लिए भी मोस्टली चैलेंज ही होगा और बहुत कोशिश करनी, मेहनत करनी पड़ेगी मुझे भी. तो इस गाने के जो लिरिसिस्ट हैं आसिफ चांदवानी, बहुत ही प्यारे लिरिसिस्ट हैं और म्यूजिशियन हैं माशाल्लाह, और
इनसे सीखे हुए हैं। तो मतलब देखिए कि एक अच्छी टीम बहुत काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप मुझे ब्लेस करें कि मैं अच्छा कर पाऊँ आगे। इंशाल्लाह यार, गॉड इज ग्रेट। तो तीनों में कितना गैप होगा? 3 गाने जैसा कहे, कितना गैप होगा वो? हाँ, गैप कितना होगा? ये गैप तो सर आपको केवल दीपक जी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मतलब जैसे प्लानिंग के हिसाब से See, basically, एक song का shelf life, as they say, is around about 3 to 4 months, approximately, basically. करेक्ट। So, hopefully, 3 to 4 months का gap behind one song would be there. But then rest it depends how the production works and कैसे progress करते हैं हम लोग, and output कैसा निकलता है first गाने का. So, hopefully, inshallah, we'll have a 3 months to 4 months का approximate gap behind one song. मतलब अगले अगस्त तक आप पूरी सीरीज देख पाएंगे। Yes. मतलब ऐसा। क्या हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में ऐसे ढेरों सारे सॉन्ग, ढेर सारे प्रोजेक्ट ऐसे बैक टू बैक देखने को मिलेंगे आप लोगों की तरफ से? Absolutely. सर की तरफ से मिलेंगे। मैं एक अभिनेता की तरह काम करूँगा। भाई बैठे हैं, वो हमारे लिए गाते रहेंगे, सामने हम, पीछे ये लोग, तो वैसे अच्छा काम करेंगे। और आप लोग हो ना भाई? हाँ, बस आपका साथ हमारा विकास। बल्कि हमारी मोदी, ठीक है सर? हमारे मोदी। जी 2 लाइन वजह सर गाने की। 2 लाइन्स अगर आप गुनगुना सकें। मैं अभी तो रिवील नहीं करना चाहता गाना। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मिक्स होके आ जाए सामने। रंगरेज़ा है गाने का टाइटल, और क्या बोलते हैं सर, आप चाहते हैं कि नहीं गा दें? नहीं, वेट करने दो, वेट करने दो। वेट करने दो। अभी वो शब्द में रहने दो सबको, रंगरेजा में रहने दो। हाँ, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं गुरु एंड दीप शाहिद से, जो उनका कोई फेवरेट गाना रहा जो ऑडियंस वो तो शाहिद भाई के ऊपर नहीं, है। मेरा फेवरेट अगर शाहिद भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इसी गाने को लेकर मैं शाहिद भाई की आवाज़ सुनने के बाद है ना, मैं कौन है भाई? मैंने बोला कि शाहिद। मैं कहा अच्छा। देन वो मुझे अच्छा लगा कि पहली बार मैं अपने ज़िंदगी की, अपने करियर की शुरुआत इनके साथ कर रहा हूँ कि ये सामने में, और आवाज़ ये मेरी है। रंगरेज़ा हम तब सुनेंगे जब रिलीज के आसपास होगा, पर Yes. अभी मैं शाहिद भाई से सुनना चाहूँगा एक कोई। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूर। मैं सबसे पहले कह दूं कि रंगरेज़ा गाना हम आपसे अभी छुपा के रख रहे हैं थोड़े दिन के लिए। कुछ दिनों में आपके सामने होगा विद वीडियो एंड एक्शन एवरीथिंग। तो आप उसे ज़रूर सुने, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। Absolutely. और जैसा कि देव ने कहा कि मैं एक कुड़ी की 2 लाइनें सुनाऊं, तो इजाज़त हो तो Please, please, मजान। please. तो अमित त्रिवेदी जी का ये गाना 2 लाइनें आपके लिए। सूरत उसदी परियां वर्गी, सीरत दी ओ मरियम लगदी, हसदी है तां फुल चढ़दे ने, तुरदी है तां गज़ल है लगदी, लम सलमी सरू दे कददी है, उम्र अजे है मर के अगदी, पर नैना दी गल समझदी, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। अरे मुझे लगा मैंने ज़्यादा गा दी। 2 लाइनें से 8 लाइनें हो गई। Thank you. Thank you so much. Thank you very Thank you. Thank you.